Good morning students, welcome to you in your political science class. As you know, our chapter number 9 globalization is going on. In that chapter we started the meaning of globalization, causes of globalization and what are the consequences of globalization. These are three parts like political consequences, economic consequences and cultural consequences. In our last class, we completed the cultural consequences of globalization. Today we are going to start the last part of the chapter, that is the India and globalization. In this class, we will complete India and globalization, then resistance to globalization, criticism of globalization, and then India and resistance to globalization. This is common resistance to globalization. ये सबके लिए जनरल है जो क्रिटिसिज्म, लेकिन इंडिया कैसे ग्लोबलाइजेशन की क्रिटिसिज्म कर रहा है, दैट इज आवर लास्ट वन. सो फर्स्ट वन इज द इंडिया एंड globalization. And you know, globalization is not a new concept for India. In the earlier time also, in the earlier history also, we have seen four flow of things moving from one place to another. Means globalization in four flows. These four flows are goods, ideas, capital and people. There are the four flows of movement of the ideas, movement of the goods, movements of the capital from one part to another and movement of people from one part to another. तो ये चीज़ कोई इंडिया के लिए, अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो इंडिया के लिए कोई नई बात नहीं है. अगर हम ब्रिटिश रूल की बात करें तो व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ मूविंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर एट दैट टाइम. तो हम बात करेंगे कि जैसे आप पढ़ चुके हो अपनी प्रीवियस क्लासेस में कि हाउ डिड ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया एंड हाउ डिड दे सेट अप देयर रूल इन इंडिया. कैसे जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में आए और दे केम एज ए ईस्ट इंडिया कंपनी एंड लेटर ऑन दे सेट अप देयर रूल इन इंडिया. They were taking raw material from India at a very low rate and they were selling their finished good in India at a very high cost. वो इंडिया से सामान जो थे, कच्चा माल लेके जाते थे, रॉ मटेरियल, और उनके बाद वहाँ मशीनों से इंग्लैंड और बाकी और कंट्रीज़ में जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था, तो ऑल द वर्क, ऑल द फिनिश प्रोडक्ट वर सोल्ड इन इंडिया एट ए वेरी हाई रेट. So this was the trend during when the British rule was going on. लेकिन when we got independence in 1947, so what was the status of globalization at that time? Our industries were very backward position at that time. हमारी जो इंडस्ट्रीज थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बैकवर्ड पोजीशन में थी, बिकॉज ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉयटेड all the things. Means our industries were not in a good shape, our agriculture were at very in backward position, so all the outdated methods were used in agriculture and industries when we got independence. तो आफ्टर दैट हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने क्या पॉलिसी ऑप्ट की. हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने ट्रेड बैरियर्स लगा दिया था कि, और उसके साथ साथ अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेव करने के लिए गवर्नमेंट जो थी उसने एक और पॉलिसी जो फॉलो की थी, दैट वाज द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म. दिस वाज टू सेव आवर इंडस्ट्री. प्रोटेक्शनिज्म, पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शनिज्म वाज फॉलोड टू प्रोटेक्ट आवर प्रोड्यूसर्स. हमारे जो अपने प्रोड्यूसर्स थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी ऑप्ट की. दिस मीन्स व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या था कि नॉट टू अलो अदर्स टू एक्सपोर्ट टू अस, कि दूसरों को भी अलो नहीं करना कि हमें एक्सपोर्ट कर सकें. ठीक है, तो इसलिए हमने जो प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी गवर्नमेंट ने फॉलो की, ट्रेड बैरियर्स लगा दिए, काफ़ी टैक्सेस होता था बाहर वाली इंडस्ट्री जो सामान आता था, ताकि हमारे अपने प्रोड्यूसर जो हैं
उनका सामान बने और उनका ही कंट्री में सेल हो, हमारी कुछ इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश हो। तो इन दिस वे, लेकिन आफ्टर दैट क्या हुआ कि इसके बाद कुछ सम एडवांटेजेस वर देयर इन सम एरियाज, इसका फ़ायदा कुछ एरियाज में तो हुआ, बट सम सेक्टर्स लाइक critical sectors, health, education, and especially the primary education, housing, did not receive much attention. Education, primary education, health, they did not receive any the attention and they preserved. उसके बाद India had a fairly sluggish rate of economic growth. इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट था वो काफ़ी स्लगिश था एट दैट टाइम। तो उसके बाद रिफॉर्म्स वर रिक्वायर्ड। इन 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज अडॉप्टेड। एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी हमारी उस टाइम पे, जो कांग्रेस गवर्नमेंट अंडर पी.वी. नरसिम्हा राव वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह who was the finance minister at that time. In 1991, Dr. Manmohan Singh, who was the finance minister of India at that time, a new economic policy (NEP) was adopted. According to this new economic policy, हमारे जो नए जो हमने इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन जो था, और इसके साथ हमने वो ऑप्ट किया लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन जो था वो वाली पॉलिसी हमने ऑप्ट की, ताकि और बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए। जो ट्रेड बैरियर्स पहले लगाई थी वो हटा दी गई। और लिबरलाइजेशन मीन्स कि जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस थी इंडस्ट्रीज़ के बाहर वाले के ऊपर, जितने टैक्सेस के फॉर्म थे वो सब हटा दिए। SEZ, जिनके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वर सेटअप इन इंडिया to attract the foreign investment, to attract the foreign industries. So इससे क्या हुआ कि अब तक जो अभी कुछ सेक्टर्स जो हैं उनमें फॉरेन इंडस्ट्रीज़ जो लग गई, MNC जो हैं वो सेटअप हो गई हैं, और सो मैनी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आर देयर ऑफ द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। जो MNC जो आई हैं उनके बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन ग्रोथ रेट हाई हुआ है कंपैरेटिवली। बट इसके साथ अब खाली ग्रोथ रेट हाई होना ही काफ़ी नहीं है। द मेन बेनिफिट ऑफ ग्रोथ आर शेयर्ड दैट कि जो एवरीवन इज़ बेटर, कि उसका जो ग्रोथ रेट है खाली बढ़ना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो जो बढ़ा है वो उसका शेयर सबको मिलना चाहिए। तो ये दिस इज़ द वन पार्ट ऑफ इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। आवर नेक्स्ट पार्ट इज़ द रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। क्या इस ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी की क्रिटिसिज्म भी हुई है? क्या लोग सारे इसके फेवर में कर व्यूज़ दे रहे हैं? इज़ देयर इज़ एनी नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन? सम पीपल आर अगेंस्ट, सम पीपल आर क्रिटिसाइजिंग दिस ग्लोबलाइजेशन। दे आर हैविंग दिस व्यू, कि उनका ये व्यू है कि दिस लेड टू द, कि आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो ग्लोबल के कॉलोनलिज्म है वो सेटअप हो गया। जैसे कि अर्लियर द ब्रिटिश सेटअप देयर कॉलोनलिज्म इन इंडिया, उन्होंने एक कंपनी के तौर पे आए और धीरे धीरे अपना रूल सेटअप कर लिया। इसी तरह से जो ग्लोबलाइजेशन है दैट लेड टू द ग्लोबल वन कॉलोनलिज्म, क्योंकि जो पुअर कंट्रीज़ हैं दे आर बिकमिंग पुअर एंड रिच कंट्रीज आर बिकमिंग रिच, पुअर आर बिकमिंग पुअर एंड रिच आर बिकमिंग रिच। और इसके साथ साथ जो ग्लोबलाइजेशन की क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वो कह रहे हैं, तीन तरह से ग्लोबलाइजेशन की क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली। जो तीन पार्ट अर्लियर भी कंप्लीटेड। पॉलिटिकल, सम आर क्रिटिसाइजिंग, व्हाई दे आर पॉलिटिकली, दोज हु आर क्रिटिसाइजिंग, व्हाट आर देयर व्यूज़, वो क्या कह रहे हैं जो पॉलिटिकली क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जैसा कि इंडिया के साथ हुआ, जैसा एशियन कंट्रीज़ के साथ हुआ, कि ग्लोबलाइजेशन की आड़ में जो कंपनीज इंडिया में आई अर्लियर, लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड दे सेटअप देयर रूल इन इंडिया, उन्होंने अपना इंडिया में रूल सेटअप कर लिया एंड दिस लेड टू द, इससे क्या हुआ कि पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो इससे दे ऑल्सो आर हैविंग फियर ऑफ द वीकनिंग ऑफ द स्टेट, इससे जो स्टेट है वो वीक होगा।
और इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंस ख़त्म हो जाएगी। और प्रोटेक्शनिज्म जो है दे आल्सो वो चाहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दे वांटेड कि सेल्फ डिपेंडेंट शुड बी देयर, ईच कंट्री शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट एंड प्रोटेक्शनिज्म अर्लियर प्रोटेक्शनिज्म शुड बी देयर इन ए कंट्री। अपनी इंडस्ट्री जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। और कल्चरली दे आर हैविंग दिस व्यू कि दिस लेड टू द all lose people will lose the old age customs and values। इससे लोग अपनी ओल्ड एज कस्टम जो है और वैल्यूज़ को लूज करेंगे। तो इन दिस वे मैनी एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट आर देयर, बट ऑल द एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट आर नॉट अपोज टू द ग्लोबलाइजेशन। सारे जो हैं वो खाली ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट नहीं हैं, दे आर नॉट अपोज टू द आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वो आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन के अपोज नहीं है, बट दे आर अपोज टू द स्पेसिफिक प्रोग्राम ऑफ ग्लोबलाइजेशन विच दे सी एज ए फॉर्म ऑफ इम्पेरियलिज्म। जो कि एक उनको लगता है कि जो ग्लोबलाइजेशन अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन इसके जो कुछ प्रोग्राम हैं जो कि ये इम्पेरियलिज्म सेटअप करना चाहता है, जैसे कि वर्ल्ड में अपनी डोमिनेशन सेटअप करना चाहते हैं, वो गलत है। बाकी आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन गलत नहीं है। तो फिर इसके लिए जैसे कि 1990 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यू नो वन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज देयर इन वर्ल्ड, दुनिया में एक वन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, और उनके मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। उनके सारे जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने मीटिंग हुई, और उन्होंने उस मीटिंग में व्हाट वाज द डिसीजन कि ये इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जितने कंट्री डेवलप एंड डेवलपिंग, ऑल द मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, द मिनिस्टर्स ऑफ ऑल दीज कंट्री मेट टुगेदर एंड द कंक्लूजन, और इसमें से ये आर्ग्यू किया गया, इट वाज आर्ग्यूड दैट द इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड वर नॉट गिवन सफिशेंट इम्पॉर्टेंस। कि जो दुनिया के जो जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर सफिशेंट इम्पॉर्टेंस जो है नहीं दी जा रही इन द इवॉल्विंग ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। कि ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ को ध्यान ही नहीं दिया जाता। डेवलप अपनी डोमिनेशन सेटअप करना चाहते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज हों, आइदर वो दे आर इकोनॉमिक और सोशल कॉन्सिक्वेंस। तो ये डिसीजन हुआ वहाँ पे। तो लेटर ऑन वन वर्ल्ड सोशल फोरम WSF World Social Forum that was set up. This is another global platform. World beside WTO, World Trade Organization के अलावा World Social Forum is another global platform which consists the representative of environmentalists and human rights activists, labor and youth, women activists. They are opposed to new global this new liberal globalization. जितना भी ये वर्ल्ड सोशल फोरम में जितने भी लोग हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, विमेन एंड लेबर एक्टिविस्ट हैं, दे अपोज्ड न्यू ग्लोबल लिबरल ग्लोबलाइजेशन। जो नया लिबरल ग्लोबलाइजेशन है उन्होंने उनकी अपोज की। एंड द फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन 2001, सेकेंड मीटिंग वाज हेल्ड इन 2004, fourth meeting was held in 2004 and the seventh meeting was held in 2007। इसी की पहली मीटिंग जो 2001 में हुई वो ब्राज़ील में हुई, और फोर्थ मीटिंग इंडिया में हुई मुंबई में 2004 में, और जो सेवन्थ मीटिंग थी इसकी वो कीनिया में 2007 में हुई। और इंडिया एंड रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, इंडिया जो है अब वो कैसे ग्लोबलाइजेशन को क्रिटिसाइज कर रहा है। तो अगर हम अपने मूवमेंट अपने इसके प्रोटेस्ट की बात करें ग्लोबलाइजेशन की, तो हम कहेंगे कि देयर आर सो मेनी सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया विच आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग पीपल मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम। बहुत सारे सोशल मूवमेंट हैं जो कि लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि कैसा वर्ल्ड उनके अराउंड है एंड हाउ टू find ways
टू डील विद मैटर दैट ट्रबल देम, कि लोगों को अवेयर करना और उनको बताना कि मैटर्स जो हैं वो कैसे सोल्व हों। और इसके साथ साथ आपको पता है हमारे इंडिया में कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं जिनको लेफ़्ट पार्टीज़ का नाम दिया जाता है, लेफ़्ट फ्रंट का नाम दिया जाता है, लाइक CPI एंड CPM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिज्म। ये पार्टीज़ जो हैं इनको लेफ़्ट फ्रंट का नाम दिया जाता है। दे आर ऑल्सो अपोज टू ग्लोबलाइजेशन, वो भी ग्लोबलाइजेशन लिबरल रिफॉर्म के अगेंस्ट हैं। और उनके साथ साथ हमारी ये पार्टीज़ के अलावा कुछ इंडियन सोशल फोरम भी हैं, दे आर ऑल्सो अगेंस्ट द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। और ट्रेड यूनियंस ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, peasants, workers are also there which are opposing the policy or which are resisting this globalization। और तो जैसे कि फॉर एग्जांपल द पेटेंटिंग ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक नीम बाय अमेरिकन एंड यूरोपियन फर्म्स, अमेरिकन और यूरोपियन फर्म के द्वारा जो नीम की पेटेंटिंग की गई, लेना चाहा, तो हैज़ जनरेटेड कंसिडरेबल अपोजिशन। इसके बारे में बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि अमेरिका और यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वाई दे आर पेटेंटिंग दिस नीम प्लांट। तो लास्ट में हम बट वी विल से इन द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर हम कहेंगे कि द रेजिस्टेंस ऑफ टू ग्लोबलाइजेशन हैज़ कम फ्रॉम पॉलिटिकल राइट। और नोट ओनली दिस, हमारे जो कई फॉर्म में इसकी जो रेजिस्टेंस है वो हो रही है और वेरियस कल्चरल इन्फ्लुएंस की हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्यों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो सोशल फोरम हो, चाहे वो लेफ्ट पार्टीज़ हो, चाहे वो एक्टिविस्ट हों डिफरेंट, और दे आर प्रोटेस्टिंग किस चीज़ का, कि दे आर प्रोटेस्टिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन TV channels। So many foreign channels are there in India and provided by cable network. They are protesting against this cable network, those who have started so many foreign channels in India। Not only this, celebration of Valentine's Day, वैलेंटाइंस डे जो है उसकी सेलिब्रेशन का भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि दिस इज़ नॉट ए इंडियाज़ वन ट्रेंड ट्रेडिशन, और इसको भी बंद किया जाए वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन। एंड वेस्टर्नाइजेशन ऑफ ड्रेस टेस्ट ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन स्कूल एंड कॉलेजेस, जो वेस्टर्नाइजेशन ऑफ गर्ल्स ड्रेसेस जो पहनती हैं स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, इसका भी प्रोटेस्ट हुआ। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन विच टुक प्लेस इन इंडिया। सो विद दिस आवर चैप्टर इज़ कंप्लीट, वी completed the whole chapter globalization, last chapter of this part। With this our book is complete except the chapter 1, 2, 3 which are deleted from this year। तो इसके साथ ही हमारी ये किताब जो है वो कंप्लीट हो गई है। ऑल ऑफ यू आर सपोज टू रीड द चैप्टर एंड कंप्लीट द असाइनमेंट, लर्न साइड बाय साइड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप जितना भी काम होता है वो साथ साथ लर्न कीजिए, क्योंकि लेटर ऑन यू कैन परफॉर्म वेल, और जो आपके आंसर्स हैं वो लॉन्ग नहीं हो पाएंगे, मतलब लिख नहीं पाओगे जब तक आप अच्छे से उसको रिवाइज करके उसके पॉइंट्स नहीं लिखोगे। विद दिस थैंक्स ऑल ऑफ यू।